Hello dear aspirants, how are you? I am Satyanarayan Prajapat, IPS officer of 2019 batch. First of all, let me wish you a very happy and achievement filled new year. So happy new year 2023. And guys, I have also changed the name of my channel, and from La Education I have made it very simple, Study R with Satya. So you can search Study R with Satya on YouTube and you will get my videos. So in this important discussion, we are going to talk about a concept in Indian polity, that is the interstate relations. And whenever there are disputes between two states or a dispute between center and states, what is the mechanism to resolve these disputes, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन दैट वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ इन न्यूज़, बिकॉज यू नो दैट यूपीएससी जो न्यूज़ में जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछती है. वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि क्या न्यूज़ में था, बट दे विल आस्क अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस द टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी इन द न्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल, you all know that there are border disputes between some areas in both Karnataka and Maharashtra. So you have guessed it right. The state of Maharashtra and Karnataka, they have locked horns over the areas of Belgaum and Narwar, Karwar, that area. So that is the very reason that this concept is important for the UPSC. एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो स्टेट्स हैं उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उनमें बेलगाम यानी कि बेलगवी जिसका ऑफिशियल नेम है, कारवाड़ का जो रीजन है कारवाड़ एंड निपानी. सो दीज आर द एरियाज इन नदर्न कर्नाटका. दीज एरियाज आर basically Marathi speaking majority people, but they are part of Karnataka, particularly North Karnataka. So the history of the dispute goes back to the 1948, and when the states were reorganized in India, and you all know that the boundaries between states was redrawn on linguistic basis as per the recommendations of the States Organization Act of 1956. एंड हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से जो है वो इंडिया में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. बट जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो बाउंड्री का जो सेटलमेंट किया गया था, उसके हिसाब से जो बेलगवी वाला जो पार्ट है यानी कि बेलगाम वाला जो पार्ट है, दैट वाज लाइक गिवन टू द मैसूर स्टेट, जो उस टाइम पे बनाया गया था, जो बाद में कर्नाटका बन गया. बट महाराष्ट्र स्टेट जो है वो क्लेम करता है कि जो मराठी स्पीकिंग जो जहाँ डोमिनेंट लैंग्वेज है मराठी, दैट एरिया शुड रिमेन इन महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र ऑलवेज ऑब्जेक्टेड द concept of giving Belgavi to Karnataka, and in October 1956 to resolve this dispute, center set up a commission, Mahajan Commission, to resolve the border between Maharashtra, Karnataka and Kerala. So this is important. This can be asked in UPSC prelims as well as mains. You have to write that Mahajan Commission was set up to resolve the dispute between Maharashtra, Karnataka and Kerala, and this commission recommended that 247 villages and Belgaum, they should remain with Karnataka. So the verdict was given in the favor of Karnataka state, but Maharashtra rejected this report, and in 2004 Maharashtra moved to the Supreme Court. सो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो स्टेट्स की जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसकी क्या हिस्ट्री है, बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलरली. सो ये 3 स्टेजेस में हुआ था और 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन से. फर्स्ट वाज द एस.के. धर कमीशन ऑफ 1948. सो एज सून एज वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, the then home ministry they decided that we have to reorganize the states, because बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको ब्रिटिश इंडिया में एक्सेप्ट किया गया था, उनका एक्सेशन किया गया था, और फिर उसके बाद में जो स्टेट्स जो हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना ज़रूरी था. सो 1948 में एस.के. धर कमीशन की स्थापना की गई थी, एंड जो एस.के. धर कमीशन है उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाने के लिए रिजेक्ट कर दिया था. दे रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक फार्मूला एंड दे सेड कि जो आपको स्टेट्स जो बनाने हैं उसके लिए क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए. 1 इज़ जोग्राफिकल कंटिन्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट. तो दीज वर द 4 क्राइटेरिया विच वॉज रिकमेंडेड बाय धर कमीशन. अगर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको चारों पॉइंट्स लिखना पड़ेगा.
देन इन 1948 लाइक दिसंबर में जब कांग्रेस का जयपुर सेशन हुआ था, उस दौरान जो है वो JVP कमेटी की घोषणा की गई थी. दैट वाज जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताभी सीतारमैया. सो दोज वर कांग्रेस लीडर्स एंड अंडर देम अ कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. और जो इस कमेटी का टास्क था वो ये था कि जो धार कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उनको कंसिडर करना. और नेहरू, पटेल और जो सीतारमैया की जो कमेटी थी उन्होंने भी जो लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया था उसको रिजेक्ट कर दिया था. उनके हिसाब से जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए वो सिक्योरिटी, यूनिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ध्यान में रख के किया जाना चाहिए. बट उस टाइम पे जो है वो पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश और जो पर्टिकुलरली जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स के फॉर्मेशन की डिमांड काफ़ी लाइक ज़्यादा थी. और वी ऑल नो दैट आंध्रा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. वहाँ पे जो श्रीरामुलु का जो एजिटेशन हुआ था और फिर उनकी डेथ हो गई. सो गवर्नमेंट हैड टू एक्सेप्ट द लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया और उन्होंने सबसे पहले जो है वो आंध्रा की स्थापना की थी इन लाइक 1952. और 1953 में जो है वो फिर अलग अलग स्टेट से जब ये आवाज़ आने लगी कि जो है हमारे स्टेट्स भी जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म होने चाहिए, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में स्टैब्लिश किया. और उसमें 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे. फजल अली इनके कमीशन के चेयरमैन थे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे HN कुंजड़ू. सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, ही जे की जगह के होना चाहिए. HN कुंजड़ू and KN Panikar. So this also is important. So they also then they have to accept the language formula and they suggested that all the states जो उस टाइम पे जो थे they should be reconstituted into 16 states and 3 union territories. and जो फजल अली कमीशन जो था या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था, इनकी रिकमेंडेशंस को लाइक आमली जामा पहनाने के लिए या उनको एक जो आपका लीगल शेप देने के लिए द स्टेट दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे पास्ड एन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 on 1st of November 1956 there was formation और reorganization of states. So उस टाइम पे 14 states and 6 union territories का जो है establishment 1st November 1956 को किया गया था. So that was the background to the states reorganization commission. and उसी दौरान जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो बेलगाम वाला रीजन है उसको लेकर डिस्प्यूट आया था. तो नाउ वी विल कंसिडर व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू रिजॉल्व द इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स. वी हैव सीन इन recent past that various states are like having various kind of disputes with respect to water sharing and the rivers and dam construction. So between different states जहाँ पे इवन सेम गवर्नमेंट होती है, सेम पार्टी गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे भी वी हैव सीन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स. सो फॉर एग्जांपल कर्नाटका एंड तमिलनाडु दे वर लाइक देयर वर एजिटेशंस विद रेस्पेक्ट टू द शेयरिंग ऑफ कावेरी वाटर. देन पंजाब एंड हरियाणा के बीच में भी जो है वो सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेकर डिस्प्यूट्स हैं. असम जो है वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड्स कि असम का जो ऑलमोस्ट जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं सबके साथ जो है वो बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. तो देन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं. सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. वन इज़ द जुडिशियल वे और द जुडिशियल रिड्रेसल. सो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 131 दैट कवर्स द डिफरेंसेस और द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. So the article 131 of the constitution says that subject to the provisions of this constitution the Supreme Court shall to the exclusion of any other court have original jurisdiction in any dispute. तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यू शुड रिमेंबर दैट this is the original jurisdiction of Supreme Court to settle down the disputes between two different states or differences or disputes between the center and state. So these are the 3 type of disputes which are mentioned, like between the government of India or one or more states, between the government of India or any state, or between state on one side and center on the other side, and between 2 or more states. So these are 3 different categories, and the dispute should have some kind of legal right. तो जब डिसाइड करना होता है कि लीगल राइट क्या है, वेदर इट इज़ अ मैटर ऑफ लॉ और अ फैक्ट, then the Supreme Court considers these type of disputes and the disputes such as like sharing of water
एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में और पर्टिकुलरली जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको सुलझाता है एंड सुप्रीम कोर्ट है डन दैट on so many occasions including the Kaveri judgment. Then the very important concept interstate council, this is also a constitutional body. So article 263 of the constitution says that the president has the power to set up an interstate council for the resolution of disputes between states. So the constitutional mechanism to resolve the dispute is given in the constitution, although the constitution mentions the interstate council, but it was not formed until 1990. So in 1998 जो सरकारिया कमीशन था जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस किस तरह के होने चाहिए और उन्होंने जो काफ़ी डिटेल्ड में सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे. सो वन ऑफ द रिकमेंडेशन वाज दैट दिस interstate council should be a permanent body, and on the recommendation of Sarkaria Commission in 1919 it came into existence through a presidential order. So president released an order in the Gazette of India, and that's how the formation of interstate council took place. But till date, यानी कि आज तक there have been only 11 meetings of the interstate council which has taken place. Prime Minister is the chairman of this council, and the members include all the chief minister of the states and some of the union government ministers. But unfortunately, or you can say that the potential of interstate council to solve the disputes between different states and to consider the important policy decisions between center and states, because there are so many important areas of policy such as education and health and with related to the elections like one nation one election, these kind of things जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स जो हैं वो दोनों की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है. द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे बिकॉज एनी क्राइटेरिया विच एनी पॉलिसी विच सेंटर मेक्स हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो जो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सो दिस इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ इनफ validity because it is a constitutional body. Its status is that it is a permanent constitutional body now, and it can be an important institution for the cooperative federalism, but unfortunately it has not been properly utilized. So that you have to write if the question is asked in mains. प्रीलिम्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि कितनी मीटिंग्स अब तक हो चुकी है या फिर कौन से रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल केम इनटू एग्जिस्टेंस, या फिर जो है वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये कह सकते हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी फॉर्मेशन 1950s या जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसी टाइम कर दी गई थी. तो दैट विल बिकम अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द करेक्ट थिंग इज दैट इंटर स्टेट काउंसिल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990. दैट you should remember for prelims. Then what is the role of interstate council? We have already discussed, and the role which is given in the constitution is as such that if at any time it appears to the president that the public interest would be served by the establishment of a council, it should be charged with the duty of first inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between states. So पहला काम है interstate council का disputes को resolve करना. सेकेंड काम है इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच सम और ऑल द स्टेट्स और द यूनियन और सम स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि द थीम्स ऑफ डेवलपमेंट और द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल construction of dams, health, education, and so many other construction of roads, everything. So all these have common interest of both center and state, particularly the developmental work. So ये भी consider किया जा सकता है. And third is like making recommendation upon any subject, in particular recommendations for the better coordination of policy and action with respect to that subject. So जो concurrent list के जो subjects हैं उन पे जब policy formulation होती है तो interstate council को ये रेफ़र किया जाना चाहिए. एंड देयर हैव बीन डिमांड्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स चीफ मिनिस्टर एज वेल कि इंटरस्टेट काउंसिल की जो है वो रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने कहा था कि इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग्स नहीं हो रही है फ्रीक्वेंटली, एंड ही रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर दैट इंटरस्टेट काउंसिल का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो होना चाहिए. और जहाँ जहाँ ऐसे पॉलिसी मैटर्स है जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे पर्टिकुलरली इंटरस्टेट काउंसिल को बीच में अपना रोल प्ले करना चाहिए. सो दैट इज़ द रोल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल. नाउ वी विल हैव अ लुक एट दिस मैप, एंड इट शोज़ दैट देर आर different states which have engaged in several kind of
disputes, particularly with respect to the boundary. So this was the question which was answered by central government minister in 2015, and in to answer to that question, the question was कि किस किस states के बीच में border disputes है. तो Assam, you see, has the disputes with most of its neighbors, including Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, and Meghalaya, with respect to the boundaries. अदर देन दैट यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र ऑलरेडी हम देख रहे हैं, अभी रिसेंट न्यूज़ में है. देन देर आर डिफरेंसेस बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल विद रिस्पेक्ट टू द लेह वाला जो एरिया है आपका. एंड देन हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश के बीच में भी जो है वो देर आर सम बॉर्डर डिस्प्यूट्स. So this can be asked in prelims and you can write in mains as well. Thank you so much guys for watching the video patiently, and in case if you have any doubt, you can contact me. My contact number is 7016308832. I repeat, 7016308832. If you have any kind of doubt with respect to the preparation for UPSC, you can text me on WhatsApp, and it's my personal guarantee that within 24 hours I will reply to your queries. And I request you to share this video with others if you find it useful, and you can subscribe to my channel to get such more informative video. Thank you so much guys, have a nice day, and wish you a very happy new year once again.